بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے مد اصلی اور مد بدل کے اندر ایک کمپیریزن کیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر مد بدل کہاں پایا جاتا ہے اور مد اصلی کہاں پایا جاتا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ابھی جا کے اس کو دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد متصل کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مد متصل کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے قرآن مجید کے اندر ہم کیسے فرق کر سکیں مد متصل اور مد منفصل کے درمیان، یعنی قرآن مجید کے اندر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے، کیونکہ ہمارے قرآن مجید کے اندر مد منفصل کے اندر جو سمبل پایا جاتا ہے ویسا ہی سیم سمبل جو ہے وہ مد متصل کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو فرق کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اور اس بات کے اندر حقیقت بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے ہمارے قرآن مجید کے اندر، یعنی جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر مصحف ملتے ہیں، ان کے اندر مد متصل کا ایک الگ سمبل ہوتا ہے اور مد منفصل کا الگ سمبل رہتا ہے۔ تو اس بنا پر بھی جو ہے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے۔ لیکن کچھ قرآن پاک ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مد منفصل جیسا سمبل جو ہے وہ مد متصل کے اندر بھی آتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے بگنر جو ہوتا ہے، جو قرآن کو سیکھنے والا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے۔ لیکن آج کی کلاس میں آپ کو میں 2 پوائنٹس ایسے سکھانے والا ہوں مد متصل کے اندر، ان 2 پوائنٹس کو یاد رکھنے کے بعد آپ بنا سمبل دیکھے جو ہے قرآن مجید کے اندر مد متصل کو پہچان سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم مد متصل کی بات کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مد منفصل کی بات کریں گے، بالکل آسان اور عام فہم طریقے سے۔ اگر آپ بھی قرآن مجید کے اندر نہیں پہچان پاتے کہ کون سا مد متصل ہے، کون سا مد منفصل ہے، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے مد متصل کو سمجھتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے۔ مد کسے کہا جاتا ہے؟ مد کہتے ہیں کھینچنے کو، آواز کا کھینچنا، اسی کو ہم مد کہتے ہیں۔ اب دوسری بات یہاں پر آتی ہے متصل کی۔ متصل ہم کہتے ہیں ملے ہوئے کو، جڑے ہوئے کو، یا ایک ساتھ ملے ہوئے کو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم سمپلی یاد رکھیں متصل کہتے ہیں جڑے ہوئے کو۔ جب ہم کہتے ہیں مد متصل تو اس کا معنی ہے ملی ہوئی مد، اس کا معنی ہے ملی ہوئی مد، یا جوائنڈ مد کہہ لو یا اٹیچڈ مد کہہ لو، دونوں معنی کے اندر، یعنی ملی ہوئی مد۔ اتنا کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر جو ہے مد متصل کا قاعدہ آپ کو بتانے والا ہوں، اور قاعدے کے اندر آپ نے 2 پوائنٹس پر دھیان دینا ہے۔ ان 2 پوائنٹس کو اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو بنا سمبل دیکھے آپ قرآن مجید کے اندر جو ہے آپ مد متصل کو پہچان پاؤ گے۔ تو قاعدہ یوں ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور جس کے کھینچنے کی مقدار توسط ہوتی ہے، یعنی 4 سے 5 حرکت کے برابر۔ پھر سے ایک بار دہراتا ہوں، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آئے، تو اس مد کو مد متصل کہا جائے گا، اور جس کے کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ توسط ہوگی، یعنی 4 سے 5 حرکت کے برابر۔ اس کو سب سے پہلے یاد رکھو۔ تو اس قاعدے کے اندر آپ نے 2 پوائنٹس کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا حروف مدہ کو، دوسرا حمزہ کا اسی کلمے کے اندر آنا، یہ 2 چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، تو مد متصل آپ کو سارا سمجھ میں آ گیا۔ سب سے پہلے ہم حروف مدہ کی بات کرتے ہیں۔ حروف مدہ آپ جانتے ہوں گے، حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا۔ اب حروف مدہ کو کیسے پہچانا جائے گا؟ الف اس سے پہلے زبر ہو، واو اس سے پہلے پیش ہو، یا اس سے پہلے زیر ہو، تو اسے ہم الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کہیں گے۔ اگر واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو وہ واو مدہ یا مدہ نہیں کہلائے گا، وہ واو لین اور یا لین کہلائے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا، واو اور یا سے پہلے اگر زبر آئے دونوں کے پہلے تو وہ لین کے اندر آئیں گے، وہ مدہ کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو مدہ کے اندر آنے کی کیا شرط ہے کہ واو اور یا سے پہلے کیا ہو؟ واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، تبھی جا کے جو ہم اس کو واو مدہ اور یا مدہ کے اندر شمار کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جانا حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا۔ ختم ہو گیا؟ چلیے ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ اس کے اندر سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کا اسی کلمے کے اندر آنا۔ اب حمزہ کو آپ سب سے پہلے سیکھیں۔ قرآن مجید کے اندر حمزہ جو ہے وہ 2 طریقے کے ہیں۔ کتنے طریقے کے ہیں؟ 2 طریقے کے ہیں۔ کون کون سا؟ ایک ہے وہ آئین ٹائپ والا حمزہ، اور دوسرا ہے الف ٹائپ والا حمزہ جس کے اوپر پھر زبر زیر پیش ہوتی ہے۔
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी एक होता है आइन टाइप वाला हमजा, छोटा वाला हमजा, एक होता है अलिफ जैसा जिसके ऊपर फिर जबर जेर पेश होती है, तो उसको भी हम हमजा कहते हैं। यानी जो अलिफ खाली ना हो उसे हमजा कहते हैं। अब अगर अलिफ खाली होगा कहीं पर, उसके ऊपर जबर नहीं होगी, जेर नहीं होगी, पेश नहीं होगा, तो उसको हम अलिफ ही पढ़ेंगे। लेकिन जब अलिफ के ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, तो उसको अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, उसे हमजा ही पढ़ा जाएगा। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों हमजा के अंदर क्या फर्क है। इनके अंदर जो फर्क है वो सिर्फ लिखने का फर्क है। अब अलिफ जो है वो लंबू जी है और हमजा जो है वो छोटू जी है, बस फर्क इतना है। बाकी सिफात के एतबार से, बाकी मखरज के एतबार से ये दोनों सेम है। यानी इनके निकलने की जगह एक ही है और इनकी अदायगी भी एक ही है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि वो अलिफ जैसा लिखा जाता है और ये आइन टाइप जैसा छोटा वाला हमजा लिखा जाता है। बस इतना इसके अंदर फर्क है। अब यहां पर मद्दे मुत्तसिल के अंदर कौन सा वाला हमजा इस्तेमाल होता है? आइन टाइप वाला, छोटा वाला हमजा इस्तेमाल होता है। इसको याद रखना, मुत्तसिल के अंदर आइन टाइप वाला हमजा इस्तेमाल होता है। यह समझ में आ गया तो मद्दे मुत्तसिल समझ में आ गया। अब हमने क्या कायदा पढ़ा था कि जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे के अंदर आए तो उस मद को मद्दे मुत्तसिल कहा जाएगा, जिसके खींचने की मिकदार तवस्सुत होगी। और तवस्सुत से मुराद है 4 से 5 हरकत, 4 से 5 हरकत। और 4 से 5 हरकत का माना होता है डाई अलिफ के बराबर, 2 और आधा अलिफ। 2 और आधा अलिफ आता है तवस्सुत के अंदर, तो उसको इतना खींचा जाता है, उसी को हम तवस्सुत कहते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए ठीक है। और मद्दे मुत्तसिल जो है, मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब कहते हैं। अब इसको मद्दे वाजिब क्यों कहते हैं? इसको इसलिए मद्दे वाजिब कहते हैं क्योंकि तमाम कारी जो है, तमाम जितने भी कुरान पढ़ने वाले तमाम कुर्रा जो है, उनके यहां जो है इसके अंदर जो है मद साबित है, कसर साबित नहीं है। इस वजह से इसको हम जो है मद्दे वाजिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्दे वाजिब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मद साबित है, इसके अंदर कसर साबित नहीं है, इसीलिए इसका नाम मद्दे वाजिब है। दूसरा नाम समझ में आ गया? मद्दे मुत्तसिल का दूसरा नाम मद्दे वाजिब है। और इसकी मिकदार कितनी है? हाँ, 4 से 5 हरकत, यानी डाई अलिफ के बराबर। डाई अलिफ के बराबर क्यों? क्योंकि तवस्सुत की जो मिकदार है मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल के अंदर इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ताला अन्हु के नजदीक जो है डाई अलिफ के बराबर है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब यहां पर हम क्या देखेंगे? अब हम यहां पर मिसाल देखेंगे। हमने जाना कायदे के अंदर कि हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए उसी कलमे के अंदर, उसी कलमे के अंदर, क्योंकि हमने मद्दे मुत्तसिल पढ़ा है। मुत्तसिल कहते हैं मिले हुए को, मिले हुए को। तो हमजा उसी लफ्ज के साथ मिला हुआ होगा, ये डिटैचड नहीं होगा, ये अलग नहीं होगा, ये मुत्तसिल हमजा जो है उसके साथ ही होगा। किसके साथ? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के साथ। तब जाके हम इसको कहेंगे मद्दे मुत्तसिल। अगर हमजा अलग होगा, मतलब ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का हिस्सा नहीं होगा, यानी उनके साथ नहीं होगा, ये मुत्तसिलन उनके साथ नहीं होगा, तो हम इसको मुत्तसिल नहीं कहेंगे, तो हम इसको फिर मुनफसिल कह सकते हैं। लेकिन मुत्तसिल के अंदर हमजा उसी कलमे के अंदर आता है। कब? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद। अब हम यहां पर मिसाल को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं सूरह नसर के अंदर हम पढ़ते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। तो जब हमने इस आय करीमा को पढ़ा, आपने क्या देखा इसके अंदर? इसके अंदर हमने जो है 5 कलमों को जोड़ा, हमने 5 वर्ड्स को जोड़कर एक जुमला बना दिया। इज़ा अलग है, जा अलग है, नस्रु अलग है, अल्लाह अलग है, और वल फतह ये भी अलग है। तो ये 5 वर्ड्स हमने अलग अलग निकाले। तो अब आप जा पे गौर करें, जा तो ये सारा एक वर्ड है, जा। तो हमजा जो है ना, ये जा का हिस्सा है, ये अलग से हमजा नहीं लिखा गया। तो हमजा इसी कलमे के अंदर आया, किसके बाद? अलिफ मद्दा के बाद। अब अलिफ मद्दा कैसे आपको पता चलेगा? जीम अलिफ जबर जा, तो अलिफ से पहले जीम के ऊपर जबर आया, तो ये अलिफ जो यहां पर बीच में है ये मद्दा है। तो अलिफ मद्दा के बाद हमजा, छोटा वाला हमजा इसी कलमे के अंदर आया, तो अब जो इसके ऊपर ये मद कहलाएगी, ये मद्दे मुत्तसिल कहलाएगी। अब अगर इसके ऊपर मद्दे मुनफसिल जैसा सिंबल भी हो तब भी ये मद्दे मुत्तसिल ही कहलाएगी, क्योंकि कायदा है कि अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए उसी कलमे के अंदर, उसी कलमे के अंदर। इसका बड़ा दखल है, उसी कलमे के अंदर आना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जब ये उसी कलमे के अंदर आ गया तभी इसको हम मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो हमने इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। और ये हमजा जो यहां पर है, ये हमजा असली भी है। क्यों? क्योंकि ये रूट वर्ड का हिस्सा है। असल में जा का जो रूट वर्ड है वो है जीम या हमजा, तो हमजा इसका अपना रूट वर्ड है।
ठीक है, तो इसलिए हमजा इसके साथ है, तो अब यहां पर क्या होगा, इस मद को मद्दे मुत्तसिल कहा जाएगा। समझ में आ गया, अलिफ मद्दा के बाद हमजा का आना। अब वाव के बाद, अब वाव मद्दा के बाद हमजा का आना, जैसे हम सूरह बकरा के अंदर देखते हैं ना, सू अल अज़ाब, सू अल अज़ाब, तो सू अ अलग है, अल अज़ाब अलग है। सू अ कैसे लिखा जाता है, सीन वाव हमजा, सू अ, तो सीन के ऊपर पेश है, वाव के ऊपर सुकून है, तो वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा हुआ, तो वाव मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे के अंदर आए तो इस मद को मद्दे मुत्तसिल कहा जाएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सू अल अज़ाब, तो हम ऐसे पढ़ते हैं, है ना, सूरह बकरा की आयत, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सू अल अज़ाब, जब हमने आपको नजात दी आले फिरऔन से, वो तुम्हें दुख देते थे, सू अल अज़ाब, बुरा अजाब, तो सू कहते हैं बुरा को, अल अज़ाब कहते हैं अजाब को, तो ये दोनों अलग है, तो हमजा जो है वो सू का ही हिस्सा है, तो जब हमजा उसी कलमे के अंदर आया तो अब यहां पर जो ये मद कहलाएगी इसे हम मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमजा मुत्तसिलन इसके साथ है, ये अलग से नहीं लिखा गया, ये ज्वाइनेड है, ये अटैच्ड है, इसीलिए इसको मद्दे मुत्तसिल कहा जाएगा। हो गया वाव के साथ। अब या के साथ देखते हैं, या के साथ हम देखते हैं, जैसे सूरह निसा के अंदर हम देखते हैं आयत नंबर 4 के अंदर, गालिबन आयत नंबर 4 के अंदर वहां लिखा है हनी अन मरी अन, ये दो अलग अलग है, हनी अन यानी खुश मजेदार, मरी अन खुशगवार, अलग अलग माना के अंदर। तो हनी अन है ना, तो इसके अंदर अगर इसका रूट वर्ड देखा जाए हनी अन का, वो है हा नून हमजा, तो हमजा जो इसका है ये हमजा असली है, क्यों, रूट वर्ड का हिस्सा है। मरी अन कैसे लिखा जाता है, मीम रा हमजा, तो हमजा इसका भी हिस्सा है, तो ये हमजा इनके साथ ही है। तो अब हम जब यहां पर पढ़ते हैं ना इस आयत करीमा को, हम पढ़ते हैं हनी मरी आ, तो हम यहां पर मद्दे मुत्तसिल करते हैं, क्यों, क्योंकि या साकिन के बाद यहां पर जो है हमजा आ रहा है ना, हनी नून याजेर नी, तो या साकिन के बाद हमजा आया, हनी अन, तो नून या के बाद हमजा आया, तो यहां पर जो ये मद कहलाएगी ये मद्दे मुत्तसिल कहलाएगी। अब अगर इसके ऊपर कोई भी सिंबल हो, अब अगर इसके ऊपर मद्दे मुनफसिल का ही सिंबल क्यों ना हो कुछ कुरान के अंदर, तो हम यहां पर मद्दे मुनफसिल नहीं कहेंगे इसको हम मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। बस आपने खाली ये याद रखना है, मद्दे मुत्तसिल के अंदर जब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद आइन टाइप वाला हमजा उसी कलमे के अंदर आए, तो उस मद को मद्दे मुत्तसिल कहा जाएगा, और उसके जो खींचने की मिकदार होगी वो डाई अलिफ के बराबर होगी। क्या होगी, डाई अलिफ के बराबर होगी, और डाई अलिफ बराबर होता है 5 हरकत के। कितनी हरकत के, 5 हरकत के। एक अलिफ बराबर होता है 2 हरकत के, तो 2 अलिफ बराबर होते हैं 4 हरकत के, और आधा अलिफ बराबर होता है 1 हरफ के, तो इसीलिए हो गया 5 हरकत, तो 5 हरकत बराबर हो गए डाई अलिफ के। और इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ताला अन्हु के नजदीक जो है डाई अलिफ के बराबर खींचना साबित है, इस बात को याद रखना। तो हम यहां पर इस मद्दे वाजिब को यानी मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर आपने मद को जो है बराबर उसके अंदर तवस्सुत करना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है। आप इसके अंदर ये नहीं कर सकते इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह सू अल अज़ाब, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि यहां पर आपने जो है मद पूरी अदा करनी है, क्यों, क्योंकि मद्दे वाजिब है। तमाम कुर्रा के नजदीक ये मद्दे वाजिब है, क्योंकि इसके अंदर मद साबित है, कसर साबित नहीं है, तो कसर यहां पर नहीं करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा जिन्होंने ये सवाल किया था कि हमने एक जैसे सिंबल्स देखे हैं दोनों के अंदर। बस अब आप 2 पॉइंट्स को याद रखो, पहला हुरूफ मद्दा को, और उसके बाद आइन टाइप वाले हमजा का उसी कलमे के अंदर आने को, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि यह मद मद्दे मुत्तसिल कहलाती है, जिसकी मिकदार जो है तवस्सुत है, यानी 4 से 5 हरकत, और इस मद को मद्दे वाजिब कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने मुसलमान भाइयों और बहनों में इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि वो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है,
رہنما